Hello and welcome to I'm the Best Mom. I trust you all are keeping well and staying safe. I'm the Best Mom. Here we are committed to make your motherhood a very joyful experience. We understand that motherhood comes with a shared experiences, and we need a lot of collective knowledge and suggestions from specialized doctors and experts. And many a times, it is very important to understand how a doctor thinks and how a patient thinks. And we always carry a lot of butterfly effect with us. And Cover Pace Cover Story is the answer to many of our questions. It's extremely a pleasure for me to receive Dr. Rajni Parmania today, who will be discussing with Dr. Anuj Rastogi sir with headache in children. Dr. Rajni comes with a huge amount of experience. He is a DM Pediatric Neurology, consultant pediatric neurologist at DLK Super Speciality Hospital in New Delhi. With this, it's a pleasure having you, Dr. Rajni. And I request Dr. Anu sir, please take on the session forward. And the attendees, I am requesting you all, if you have any questions, please keep on posting it on the Q&A section. We will be taking it towards the end of the presentations. Thank you, Deepmanji. In fact, children are not miniature adults, and it is a three type of population. One is young infants or young children, another older children, and adolescents. And if we talk about headache or any other disease, the presentation is different. For headache, the young children they also face headache, and how they face headache we will be talking about it. Older children they also have headache, and the adolescent they have a lot of personality issues, behavioral issues, and emotional issues. Their presentation of headache is different. And if we talk about young child, and often I have seen child with scratching the ear and a little cranky, little fussy, not taking milk. And when I examine their ear, there is nothing. So it might be headache or a clue for the headache. Dr. Rajni, welcome on this platform. And here we have parents with us. क्या छोटे बच्चों में भी हेडेक होता है मैम? Thank you, sir, for inviting me for this session. And I'll take up the question. छोटे बच्चों में हेडेक होता है, बहुत कॉमन तो नहीं है कंपेयर टू द अडल्ट एंड एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब 10 साल से ऊपर में ज़्यादा कॉमन होता है। छोटे बच्चों में हेडेक देखा जाता है एटलीस्ट मोर देन 3 to 4 ईयर्स। तो अर्लीस्ट एज अगर आप हमसे पूछें तो वो अराउंड 3 से 4 साल के बच्चे में मिल सकता है। मोर देन 5 ईयर्स इससे ज़्यादा कॉमन, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है 8 ईयर्स 9 ईयर्स के बाद और कॉमन, और 10 के बाद तो ठीक हो जाता है। So as the age increases till 14 years, gradually headache का incidence बढ़ता है। तो 3 से 4 साल के बच्चे में भी हेडेक हो सकता है। राइट। इवन डॉक्टर रजनी, जैसे 1 साल का बच्चा है, 2 2 इयर्स 3 इयर्स का बच्चा है, अगर वहाँ पे कोई सेपरेशन एंजाइटी नहीं है, स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं है, वो बीच बीच में क्रैंकी होते हैं। एंड आई ऑफ्टन ट्रीट देम एज हेडेक बिकॉज मुझे कुछ मिलता नहीं है उनमें, कोई यूटीआई नहीं है, कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं है, ईयर इन्फेक्शन नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शन नहीं है, कोई पुल्ड एल्बो नहीं है। इवन देन दे आर वेरी क्रैंकी and they do respond to anti-headache measures. और Yes, मैं sir. हाँ, आपने ठीक बोला। जो मैं ये बात कर रही थी मोर देन 3 इयर्स या 4 इयर्स में बात कर रही थी प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर। लाइक हम जब माइग्रेन की बात करें तो ये ज्यादा आता है। हेडेक छोटे बच्चे में भी होता है, इनफैक्ट इन्फेंट्स में भी, जैसे आपने बताया जिनके नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम होते हैं उसमें हम दूसरे तरीके के कारण खोजते हैं। बट यस, हेडेक किसी भी एज ग्रुप के बच्चे में हो सकता है। यू आर वेरी राइट। एंड दे प्रेजेंट डिफरेंटली। जो उनका पेन का जो परसेप्शन है और पेन का जो प्रोसेशन है, जो उसका डिस्क्रिप्शन है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, वो बहुत डिफरेंट है बिकॉज वो अपने इमोशंस को या अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट दे कीप सेइंग इसके पेट में दर्द है, और पेट का दर्द सबसे अनकॉमन है, व्हाट आई पर्सनली फील। एंड हम भी ढूंढते हैं उनमें अगर बच्चा क्रैंकी है तो क्यों रो रहा है, और इंटरमिटेंटली बच्चा नॉर्मल हो जाता है। और आप ये देखेंगे बिहेवियरल चेंज 1 हफ्ते से आया है, 10 दिन से आया है, तो दे माइट बी हैविंग हेडेक। इवन I have seen a 1 month old child who is too cranky, and I have given him midazolam injection. He started smiling. This I have witnessed many a times. So सब छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वो बोल नहीं सकते इसलिए उनके बारे में पता नहीं चलता है, बट हम यही काम करते हैं
तो we can perceive it or we can guess it what is going on with the child. So ma'am, how common is headache in children? तो हेडेक अगर हम बच्चों की बात करें तो ऐसा बोला गया है कि करीब 60 से 70%, तो अराउंड 60 to 70% चिल्ड्रन will have at least one headache till the age of 15 years. So headache is that common. One severe headache, that means कि significant headache, not just casual headache. Headache ऐसे तो किसी को भी हो सकता है, बट जो significant headache की बात करते हैं वो करीब करीब 60% बच्चों में होता है कॉमनली। और डेटा की बात करें तो बहुत वैरिड है, 25% से लेकर 90% तक होता है, बट अंदाजन में करीब 60-70% बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। किसी को हल्की, किसी को सिवियर, तो कई बार ये अननोटिस चली जाती है। तो बहुत पेरेंट्स अगर ये टॉक पूरा सुने लास्ट में वो रिलेट कर पाएंगे कि शायद उनके बच्चे को भी ऐसी कोई सिम्टम्स हैं। Okay. And what is the commonest reason for headache in children? कॉमनेस्ट रीजन हेडेक बच्चों का, जब भी हम हेडेक की बात करते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेडेक। वन इज प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर। इसका मतलब कि बच्चे को कोई बीमारी आपको नहीं मिली जिसके कारण वो हेडेक होता है, बट उसको प्राइमरी हेडेक है, जिसका सबसे कॉमन कारण माइग्रेन होता है। माइग्रेन एंड टेंशन टाइप हेडेक बच्चों में होता है। और जब हम सेकेंडरी हेडेक की बात करें, सेकेंडरी वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट दैट किसी ना किसी और कारणवश बच्चे को हेडेक है, तो आपको वो कारण पता करना है। अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, लेस देन 5 years, मोस्ट कॉमनली दे हैव सेकेंडरी हेडेक। दैट मीन्स किसी और कारण की वजह से होना, जिसमें इन्फेक्शन कॉमन है कि ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, आपके अगर ENT ये वाले जो एरियाज हैं, जो फेस के एरियाज हैं, वहाँ पे कहीं इन्फेक्शन है, आपको साइनोसाइटिस है, तब बच्चे को हेडेक हो जाएगी। आपके कान में इन्फेक्शन है तो बच्चे को हेडेक हो जाएगी। तो ये वाले जो एरियाज हैं जो ब्रेन से बहुत क्लोज हैं, उनका रेफर्ड पेन हेडेक हो जाता है, जिसके करेक्ट सिम्टम नहीं मिलते हैं। जैसे सर ने बताया, इरिटेबिलिटी होना, बिहेवियर चेंज होना, बीच में रोना, बीच में ठीक हो जाना, तो बहुत क्लियर साइन एंड सिम्टम ना मिलना, बट ये एक इन्फेक्शन का साइन होता है। तो दैट मीन्स सेकेंडरी हेडेक। जब हम बड़े बच्चों की तरफ आते हैं, मोर देन 5 years टिल 10 years या 10 years से ज्यादा, तब प्राइमरी हेडेक ज्यादा कॉमन होता है। जिसका मतलब है कि माइग्रेन होना या किसी स्ट्रेस की वजह से टेंशन टाइप हेडेक होना, उस कंडीशन में ऐसा होता है। और अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो सबसे कॉमन कारण, वन वेरी कॉमन कारण इज वायरल इन्फेक्शन। बच्चों में नोज ब्लॉक हो गई, हेडेक हो गया, आपको थ्रोट फायरिंजाइटिस हो गया, हेडेक हो गया। ये सबसे कॉमन कारण है इमरजेंसीज में और ओपीडीज में। तो वायरल इन्फेक्शन यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट मींस अगेन इस एरिया का इन्फेक्शन। इन जनरल फीवर होना बच्चों को, अगर बच्चों को फीवर है तो भी फीवर के साथ हेडेक होना इज कॉमन। फीवर के अलावा हेडेक होने का मतलब है आप कुछ और सर्च करते हो, बट फीवर के साथ हेडेक होना इज कॉमन इन चिल्ड्रन। So I would say most common reason is viral infection, which we should always rule out in a small child. राइट। डॉक्टर रजनी, आप थोड़ा अपना माइक एडजस्ट कर लीजिए, आवाज आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही है, बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा, तो एक सेकंड। तो डॉक्टर रजनी ने बताया कि बच्चों के अंदर हेडेक दो मोटे तौर पे दो किस्म से होगा, एक तो इन्फेक्शन के साथ होगा या इन्फेक्शन के बिना होगा। इन्फेक्शन के साथ मतलब बुखार वगैरह के साथ हेडेक आ रहा है तो इट इज मोस्टली इन्फेक्शन। और अक्सर छोटे बच्चों को हेडेक और फीवर होता है, और अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं या पेरेंट्स क्लिनिक पे आते हैं, तो मैं उनको एक सिंपल टेस्ट बताता हूँ कि अपना मोबाइल बच्चे की गर्दन के नीचे लगा दो और बच्चे से गर्दन से मोबाइल होल्ड करने के लिए ऐसे कहें। अगर बच्चा ऐसे कर पाता है तो बाई एंड लार्ज उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके बच्चे को तेज बुखार है, हेडेक है, उल्टी हो रही है और वो मोबाइल को होल्ड नहीं कर पाता है, अपनी गर्दन को चेस्ट पे नहीं लगा पाता है, तो आप इमीडिएटली इमरजेंसी में जाएं और इमीडिएटली अपने बच्चे के डॉक्टर को कांटेक्ट करें। ये मेनिंजाइटिस हो सकती है जिसके अंदर हर मिनट कीमती है, जितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिलेगा उतना उसको आगे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या आगे उसको लॉस नहीं होंगे। कुछ बच्चों के अंदर ये बिना बुखार के भी हेडेक होता है, जिसके अंदर एक तो माइग्रेन हेडेक हो गया और एक टेंशन टाइप हेडेक। अब आप सोचें बच्चों को किस बात की टेंशन है, बच्चों को आजकल बहुत टेंशन है, घर में बैठे हैं तो बहुत टेंशन है, माँ डांट रही है, बहुत टेंशन है। ऑनलाइन जब पढ़ाई थी तो माँ भी कैजुअल थी, माँ को ये था कि चलो कर लेगा, ऑनलाइन में कुछ इवेल्युएशन भी नहीं है, कोई बच्चे को दूसरा बच्चे का भी कंपटीशन नहीं दिख रहा है, तो वो उस समय नहीं पढ़ रहे हैं। बट अब जैसे एग्जाम आ गए तो अब बहुत सारे बच्चे हेडेक से और पैल्पिटेशन से, घबराहट से हम लोगों के पास आ रहे हैं।
बिकॉज अब उनके फाइनल एग्जाम है, ऑनलाइन पे उनका असेसमेंट हो रहा है और वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो बच्चों में टेंशन हेडेक काफी कॉमन हो जाता है। तो मैम आप ये बताइए टेंशन हेडेक और माइग्रेन में कैसे डिफरेंस करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है जो बड़ों में जो आधा सीसी का दर्द होता है, आधी सेरेब्रल कॉर्टेक्स का दर्द होता है, बड़ों में मेन मेन फीचर आधा हाफ साइड पे होता है माइग्रेन का। बच्चों में ये शायद ऐसा नहीं होता कि आधी साइड का हो, बच्चों में दोनों ही साइड का दर्द होता है। तो ऐसे में कैसे हम टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन टाइप हेडेक में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों के? बहुत अच्छा सवाल सर, एंड बहुत ही प्रैक्टिकल है। सो जो बिना बुखार का या बिना इन्फेक्शन का जो सर दर्द होता है, उसको हम माइग्रेन और टीटीएच जो टेंशन टाइप हेडेक है उसमें डिफरेंशिएट करते हैं। टेंशन टाइप हेडेक देखा जाए तो माइग्रेन से ज़्यादा कॉमन है। तो अगर पोल लिया जाए तो करीब आपके 20 से 25% बच्चे टेंशन टाइप हेडेक में आएंगे, माइग्रेन में सिर्फ 8 से 10% बच्चे आते हैं। अगर हम बात करें कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, हेडेक का क्वालिटी कि सॉरी सिवियरिटी कितना सिवियर है। अगर हम हेडेक की बात करें और उसको आउट ऑफ 10 हम स्कोर करें कि हेडेक कितना सिवियर है, तो आप जान पाएंगे कि बच्चे का सिवियरिटी क्या है। इसमें हम मॉडरेट टू सिवियर हेडेक को बोलते हैं कि वो माइग्रेन में आता है। जो टेंशन टाइप हेडेक का क्वालिटी है वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है। दैट मीन्स कि बच्चे को हेडेक तो है लेकिन वो अपने घर के काम भी कर पा रहा है, या अपने काम भी कर पा रहा है, टीवी भी आराम से देख पा रहा है, अपने स्कूल के काम भी कर पा रहा है। उसकी हेडेक से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के एक्टिविटीज में हैम्पर नहीं हो रहा है। इट इज नॉट अफेक्टिंग हिज डेली लाइफ। बट अगर माइग्रेन किसी का सर दर्द होता है तो वो सब कुछ बंद करके बैठ जाता है। वो टीवी बंद कर देगा, उसको नॉइज अच्छी नहीं लगेगी, वो कमरा बंद करके हो सकता है डार्क करे, डार्क करके वो आराम करे। तो दोनों की सिवियरिटी में बहुत फर्क है। माइग्रेन वाला ज़्यादा सिवियर होगा, टीटीएच वाला कम सिवियर होगा। आपने सेकेंड है बताया। ड्यूरेशन। सर, राइट। जी नहीं, बताइए। ड्यूरेशन कितने कितने टाइम तक होता है। तो टेंशन टाइप हेडेक का बताया गया है कि वो करीब 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट से लेके वो आपके घंटे 2 घंटे ऐसे चल सकता है। लेकिन जो माइग्रेन होता है वो दिनों तक भी चल सकता है। इट कैन स्टे फॉर मोर देन 24 आवर्स, इट कैन स्टे फॉर 5-7 डेज एट अ स्ट्रेच। 5-7 डेज हम कैसे जानते हैं कि बच्चे हेडेक में सोया और हेडेक में ही उठा। जब वो सो रहा है तभी भी उसको हेडेक है, और वो जब सो के उठा तभी भी वो कंप्लेन करता है कि मुझे हेडेक है। दैट मीन्स वो पूरा का पूरा जो स्लीप ड्यूरेशन है वो भी हेडेक में आ जाता है। तो बच्चे को लगातार आज भी वही हुआ, कल भी वही हुआ, परसों भी यही हुआ, तो 3 दिन लगातार हेडेक है। दैट इज माइग्रेन। टीटीएच में दिनों का माइग्रेन नहीं होता। टीटीएच में कुछ आवर्स का या मिनट का माइग्रेन हो सकता है, और वो सीवियरिटी ज़्यादा नहीं होती। सीवियरिटी हम उसके डेली के लाइफस्टाइल मेजर से पता लगा सकते हैं कि वो कितना सीवियर है या नहीं है। टीटीएच ज़्यादा कॉमन होते हैं, माइग्रेन थोड़े लेस कॉमन होते हैं। राइट। तो आपने बताया कि जो टेंशन हेडेक होगा उसमें बच्चे को चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं होगी, जीना उतरने में कोई परेशानी नहीं होगी, और माइग्रेन वाले हेडेक में उसकी जो एक्टिविटी है वो भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगी, और वो खुद ही प्रेफर करेगा कि अंधेरे में बैठे और थोड़ा शोर ना मचे उसके पास। तो ऐसा आप, और थोड़ा माइग्रेन वाला हेडेक है वो लंबा चलेगा। यस। मैम, व्हाट इज द एज एट विच चिल्ड्रन डेवलप्स माइग्रेन? यस, माइग्रेन की जब हमने बात की कि अर्लीस्ट क्या एज में हम माइग्रेन सस्पेक्ट कर सकते हैं या हम डायग्नोज कर सकते हैं, so as early as 4 years child can be diagnosed as a child having migraine। वो सर दर्द बता सकता है, कैरेक्टराइज कर सकता है कि मुझे कितना सीवियर है, और नहीं भी बता पाए तो उसकी एक्टिविटी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसको कितना सीवियर हेडेक है और कितने टाइम तक रहता है। तो अर्लीस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस में 4 years तक हम माइग्रेन डायग्नोज करते हैं। What are the other causes of headache in children beside tension and migrainous headache or secondary headache? What are the other causes? तो अदर कॉजेज में जो आता है, बेसिकली हेडेक क्या है आपके, ये जो सारे एरियाज हैं, आई ई एन टी वाले एरियाज, ये सारे पेन सेंसिटिव एरियाज हैं। तो इनसे सेकेंडरी हेडेक होता है। जो प्राइमरी हेडेक है वो हमने डिफरेंशिएट किया माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक। उसके बाद एक होता है ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक न्यूरालजिया। तो आपकी बहुत सारी नर्व्स हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड हैं और वो फेस को सप्लाई करती हैं। अगर उन नर्व्स में किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हुआ या वो सेंसिटिव हो गई, तो यहाँ पे आपको सिर्फ फेशियल पेन हुआ या सिर्फ आई में पेन हुआ तो भी ऐसा हो सकता है। एक हेडेक होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में आपकी आई बॉल के यहाँ पे सूजन भी हो सकती है, लाल हो सकता है, आंसू आ सकते हैं,
आपको नाजल स्टफीनेस हो सकती है। सो बहुत सारे ऑटोनोमिक सिम्टम्स जिसे हम बोलते हैं वो हो सकते हैं, तो उनको हम क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। तो इस एरिया के जो भी फेशियल और हेडेक, फेशियल पेन इज ऑल्सो इंक्लूडेड समटाइम्स इन प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट देन हेडेक। क्या टीथ ग्राइंडिंग से भी हेडेक हो सकता है, या कोई दांत के अंदर एब्सेस हो गई है, कैरीज हो गई है, तो उससे? बिल्कुल बिल्कुल, जो दांत के यहाँ का स्ट्रक्चर है, यहाँ के दांत हैं, यहाँ पे अगर आपको एब्सेस हो गया है, कोई इन्फेक्शन है, उसका रेफर्ड पेन जाता है हेडेक। तो मैंने जैसे बोला कि पेन पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर से होता है, या तो वो हेड के बाहर है या वो हेड के अंदर है। तो हेड के बाहर क्या होगा, आपका आई बॉल का पेन, आई में कोई इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, कुछ हो गया, तो आपको हेडेक हो सकता है। कान के इन्फेक्शन, कान बहुत छोटा अंदर एरिया है, जरा सा भी इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगी, मवाद होगी, आपको हेडेक होगा। देन यू हैव योर टूथ, यू हैव योर साइनसेस, यहाँ पे साइनसेस होते हैं, आपके साइनसाइटिस हो गया तब होगा। हेड के अंदर अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, तो वो पेन सेंसिटिव होते हैं, मेनिंजाइटिस की वजह से हेडेक होते हैं। सो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ब्रेन एंड आउटसाइड द ब्रेन, तो ये कॉमन कारण होते हैं। गले टीथ में फारिंजाइटिस हो गया, ये आपको हेडेक कॉज कर सकता है। दांत बहुत चबाते हैं, टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, क्या उससे भी हेडेक हो सकता है? तो दांत चबाना इज ब्रक्सिज्म, तो अगर नींद में ही खाली चबा रहे हैं उससे तो हेडेक नोन नहीं है, बट इन जनरल उसका अगर बिहेवियर है सिर्फ टीथ ग्राइंडिंग का, और इस एरिया में देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शनल थिंग हैपनिंग, तो लोकलाइज्ड आपको पेन दिखेगा। ऐसे पूरा बायलैटरल पेन जैसे हमने डिस्कस किया, माइग्रेन का पेन होता है या टेंशन टाइप का होता है कि बच्चे को पूरे माथे में पेन है, पूरे माथे में नहीं होके आपको एक साइड का पेन हो सकता है। टीएम जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, हाँ, टीजे। इस साइड पे लोकल पेन हो सकता है। राइट। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि ज़्यादातर हेडेक बच्चों में सिंपल ही हैं, और व्हेन पेरेंट्स शुड विजिट टू ए डॉक्टर फॉर हेडेक? सो दो कारण है जब आपको हेडेक के लिए डॉक्टर को मिलना चाहिए। एक तो होता है एक्यूट सिवियर हेडेक, बच्चे का सर दर्द चालू हुआ और वो बहुत सिवियर हो गया, जिसमें अगर हम आउट ऑफ 10 स्कोर करें तो अराउंड 7-8 आएगा। बच्चे का सर दर्द बहुत तेज हो रहा है, आपने दवाई दी, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो दैट इज एक्यूट सिवियर हेडेक, तो आपको इमरजेंसी जाना चाहिए। दूसरा है एक्यूट सिवियर एंड परसिस्टेंट, पिछले 10 दिनों से बच्चे को रोज सर दर्द है, रोज होती है थोड़ी देर के लिए, फिर रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है, सो दैट 10 डेज परसिस्टेंट हेडेक अगेन इज अ रीजन आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ये तो हुआ एक्यूट कारण, दैट मीन्स अचानक जो होने वाले कारण होते हैं। फिर अगर बच्चे को क्रॉनिकली कुछ महीनों से आप देख रहे हो कि उसको हर महीने में 2 बार 3 बार ये हेडेक बोलता ही है, जिसमें बच्चा परेशान होता है, परेशान होता है मतलब उसकी जो पढ़ने की है या जो भी एक्टिविटीज है वो हैम्पर हो रही है, दैट मीन्स ये कोई सीवियर टाइप का हेडेक हो सकता है, या फिर प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर जिसको हम माइग्रेन सस्पेक्ट कर रहे हैं वो हो सकता है। तो क्रॉनिक एपिसोडिक, इसका टर्म होता है कि क्रॉनिक हुआ और एपिसोड्स में आता है रिकरेंट हेडेक, वो माइग्रेन की तरह हो सकता है, तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर लगता है कि हल्का हेडेक है और बच्चा अपने काम कर पा रहा है तो आप कुछ टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, बट फिर भी अगर 3 महीने से ज्यादा किसी बच्चे को रिकरेंट हेडेक हो रहे हैं, आपको जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। राइट। एंड व्हेन contrast studies or MRI or CT scans are required to diagnose headache or to evaluate headache? जब भी हेडेक वाला बच्चा ओपीडी में आता है और वो लंबे टाइम का होता है, जिसको हम क्रॉनिक बोलते हैं, 3 महीने 6 महीने साल भर, तो उनके इवैल्यूएशन में नॉर्मली पेशेंट आके हमें ऐसे बोलते हैं कि हमने आई टेस्ट भी करा लिया, वो भी करा लिया, वो भी करा लिया। तो एक तो पहली चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आई की प्रॉब्लम की वजह से, कि आपकी आंखों में चश्मा है उसकी वजह से हेडेक होना, या प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर, माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, ये बहुत रेयर होता है। तो सर भी शायद क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको बता पाएँ कि रिफ्रैक्टिव एरर से हेडेक बहुत कम हमने देखा गया है। वैसे हम स्क्रीन ज़रूर करते हैं, पल्स चेकिंग करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आई एग्जामिनेशन करेंगे। दूसरा हुआ कि अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चे को ऐसी कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है, कहीं ब्रेन में ट्यूमर हो गया या कुछ और है जो हम मिस कर रहे हैं, तो प्राय लोग चाहते हैं कि आप एमआरआई कराएं। बट स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि इफ़ यू गेट एमआरआई डन इन दीज चिल्ड्रन, तो एमआरआई हेडेक से रिलेटेड फाइंडिंग आपको बहुत कम मिलती है, इट इज़ वेरी रेयर, like 1 to 2% only where you get actual finding in headache। ये क्रॉनिक की बात कर रही हूँ। अगर आप अचानक सर दर्द हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन के या ब्लीड के या कुछ चीजें मिल जाएंगी,
बट जिसको लंबे टाइम से हेडेक चल रहा है, बार बार हेडेक चल रहा है, उनको ब्रेन की एमआरआई कराने से कुछ एबनॉर्मलिटी मिलेगी, उसके चांसेस काफी कम हैं। रादर उससे क्या होता है, आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आपने एमआरआई कराया, उसमें कुछ ऐसी चीज निकल के आ गई जो हेडेक से रिलेटेड नहीं है, वो और इट एड्स टू योर कंफ्यूजन। बहुत सारी इंसिडेंटल फाइंडिंग हम बोलते हैं, एमआरआई में कुछ मिला बट वो आपकी हेडेक से रिलेटेड नहीं है, दैट बिकम्स एन इंसिडेंटल फाइंडिंग। तो उसमें कंफ्यूजन ऐड ऑन हो जाता है। तो एमआरआई एडवाइस करना डॉक्टर का बहुत जुडिशियस होना चाहिए। डॉक्टर ने हिस्ट्री ली और फिर ही वो एडवाइस करता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, माइग्रेन में तो जैसे मैं नहीं बताऊंगा किसी को, इफ आई विल से इट इज माइग्रेन, आई विल नॉट एडवाइज देम टू गो फॉर राइट। MRI. But for stress headache, my first investigation of choice is MRI or CT scan because it is therapeutic also. When जो एक बच्चे की थोड़ी सी भी समझ बुद्धि है, वो समझ जाता है कि MRI मेरा नॉर्मल है तो एवरीथिंग इज फाइन, बिकॉज दे हैव एंजाइटी। और ज्यादातर जो एंग्शियस पेरेंट्स हैं उनके बच्चे और ज्यादा एंग्शियस बनेंगे। रेयरली कोई बच्चा हेडेक का आएगा, उसको हम बोलें कि MRI करा लो, तो बहुत मुश्किल है कि उसके पेरेंट्स मना करेंगे नहीं कराना। MRI से टू फोल्ड फायदा होता है। एक तो उसे बच्चे को सेडेट करा जाता है, जो भी उसकी स्टेट चल रही होती है वो काम हो जाता है, सो जाता है। लाइक क्लोनाज़ेपाम या हमने कोई भी सेडेटिव दिया तो उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। एंड व्हेन MRI इज नॉर्मल देन यू कैन प्रोग्रेस विद योर गुड ट्रीटमेंट। अदरवाइज आप कितना ट्रीटमेंट बता दो, बच्चे ने दोबारा से सिर दर्द बताना है, और सिर दर्द बता के फिर उसके पेरेंट्स ने लौट के आना है, और अल्टीमेटली उन्हें ये लगेगा कि डॉक्टर साहब की समझ में नहीं आ रहा इसको क्यों सिर दर्द हो रहा सर है। बहुत ठीक बात बोल रहे हैं, क्योंकि पेरेंटल एंजाइटी अगर ओपीडी में आप सर्वे करें तो सबसे कॉमन कारण इमेजिंग करवाने का पेरेंटल एंजाइटी होता है, क्योंकि एंजाइटी को रिलीव करना भी जरूरी है, अदरवाइज वही हेडेक रिलीव करता है। जैसे सर ने बताया, जो स्ट्रेस हेडेक की बात कर रहे हैं, अनलेस until you relieve the anxiety, या तो आप बात करके कन्विंस कर पाए देन इट्स फाइन, बट फिर भी लेवल ऑफ एंजाइटी बहुत ज्यादा है, to screen out any चीज, anything, you can order a MRI. So very rightly pointed जब out that से कम हो गए हैं और जो पेइंग कैपेसिटी है वो भी बहुत इम्प्रूव हो गई है इन जनरल, तो पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आती कि बच्चे को भी स्ट्रेस हो सकती है, कोई टेंशन हो सकती है। वो हमेशा यही कहेंगे इसको तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। एंड मोस्टली मुझे माइग्रेन से भी ज्यादा जो देखने को मिलता है वो टेंशन हेडेक मिलता है। एंड हाँ बिल्कुल ट्रू, टेंशन टाइप हेडेक इज मोर कॉमन देन माइग्रेन। so how we should treat migraine in children? तो जब हम बात करते हैं माइग्रेन की, दैट मीन्स सिवियर काइंड ऑफ हेडेक, उसके ट्रीटमेंट में देयर इज अ ट्रीटमेंट प्लान। दैट मीन्स दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। वन इज कि आप एक्यूट इवेंट कैसे ट्रीट करेंगे। आज मुझे हेडेक हुआ, मुझे हेडेक हो रही है, मैं इस टाइम पे क्या करूं, और डॉक्टर साहब ऐसी दवाई बताइए जिससे ये इवेंट बार बार ना हो, बेसिकली रिकरेंस रोकने के लिए। उसको हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। व्हेन यू गो फॉर दैट एक्यूट ट्रीटमेंट, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्ट। सो गिविंग रेस्ट, प्रॉपर मील, प्रॉपर डाइट एंड हाइड्रेशन। कई बार हम इसको अनदेखा कर देते हैं कि पानी पिलाना, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, पानी पिलाना। तो पानी पिलाना या कोई भी हाइड्रेट करना, बेसिकली हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स देना, डाइट, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स देना, नींद देना, ये सब अपने आप में रिलैक्सेशन होते हैं। फिर आप कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे हेडेक कंट्रोल होती है। तो दैट इज अबाउट मैनेजमेंट, केस टू केस बेसिस पे आप दिया जाता है। फिर दूसरा है कि कैसे हम प्रिवेंट करें। वो भी हर बच्चे के लिए सेम दवाई नहीं है, बच्चों को एज एंड बाकी चीज़ें देख के डिसाइड करते हैं कि आप हेडेक कैसे रोक पाएंगे। ये हुआ मेडिकल मैनेजमेंट। बट मेडिकल मैनेजमेंट से पहले एक मैनेजमेंट आता है जिसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस। तो अगर सर अलाउ करें तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। जी मैम, और इसके साथ आप हमें ऑरा के बारे में भी बताएं और प्री मॉनिटरी सिम्टम्स के बारे में बताएं माइग्रेन की, क्योंकि माइग्रेन किसी ना किसी की मतलब हर फैमिली में किसी ना किसी को माइग्रेन है। जी। माइग्रेन ऑरा जो होता है उससे बहुत लोग बहुत डर जाते हैं। तो किस हम्म। टाइप का ऑरा है और कैसे होता है, ये थोड़ा बताइए। तो मैं आप लोगों को और ज़्यादा जानकारी के लिए आई जस्ट शेयर अ स्क्रीन ताकि अच्छे से देख पाएँ। तो ये मैं एक डायग्राम की बात कर रही थी कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो बता नहीं पाते कि उन्हें हेडेक हो रहा है या वो कितना सिवियर हो रहा है। तो कई बार ड्राइंग के थ्रू बताते हैं। अगर छोटा बच्चा है, वो ड्राइंग कर रहा है, वो ये बताएगा कि हाँ मुझे यहाँ सर दर्द हो रही है, बच्चा रो रहा है। तो इससे आप सिवियरिटी बता सकते हैं, बिहेवियर का चेंज या फिर चेंज बाय ड्राइंग्स। दूसरा हमने बात की थी कि हम आउट ऑफ 10 कैसे डिसाइड करें। इसको हम विजुअल एनालॉग स्केल बोलते हैं।
तो 0 में कोई पेन नहीं, 10 में सबसे सीवियर पेन है, जिसमें बंदे का फेस भी अलग हो गया है, आंसू भी आ रहे हैं, आपके डेली एक्टिविटीज, आपके टास्क पे इंटरफेयर हो रहा है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ों में आप रेस्ट भी नहीं कर पा रहे। तो ये वाले सीवियर काइंड ऑफ होते हैं, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी सीवियरिटी है। हेडेक डायरी की बात मैं थोड़ी देर में करती हूँ। सर ने मुझसे ऑरा का सवाल पूछा। तो ऑरा जो वर्ड है वो बताता है कि आपको हेडेक आने से पहले उसका आगाज होना। तो वो हेडेक आया नहीं है अभी, बट हेडेक आने वाला है। जो बड़े बच्चे होते हैं, स्पेशली जो मोर देन 10 ईयर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से ये परसीव कर पाते हैं कि मेरे को ये माइग्रेन वाला हेडेक होने वाला है। तो उससे पहले क्या सिम्टम सबसे कॉमन है? 90%, दैट मीन्स 90% लोगों को विजुअल ऑरा इज द मोस्ट कॉमन ऑरा। विजुअल ऑरा का मतलब है आपको चीजें अलग अलग दिखेंगी। तो फर्स्ट का इमेज में आप देख रहे हैं कि चीजें ऐसे व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं। अगर बच्चा देख रहा है बाहर तो उसको धुंधला दिख रहा है, ब्लर्ड इमेज दिख रही है, या ऐसे व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, दैट कैन बी ऑरा। सेकंड में इमेज तो है, इमेज दिख रही है ब्लर्ड, बट उसके आगे साइड में शाइनी चीजें दिख रही हैं, दिस इज अनदर फिनोमिना। थर्ड में इमेज बिल्कुल गायब हो गई है, यहाँ पे इमेज दिख रही है ब्लर्ड है, यहाँ पे इमेज बिल्कुल गायब है, सिर्फ लाइट्स दिख रही है। तो वो घबरा जाते हैं कि मेरे को क्या हो रहा है, मैं देख तो नहीं पा रहा। और ये ऑरा अचानक चालू होता है अराउंड 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक से पहले। जिसका मतलब कि आपको अगर ये चालू हो गया तो अगले आधे घंटे में 1 घंटे में आपको हेडेक चालू हो जाएगा। तो ये एक उसका आगाज है जिसको बोलते हैं ऑरा। ये सिर्फ विजुअल ऑरा कॉमन है, मैंने बताया। उसके टाइप अलग भी ऑरा होते हैं, जैसे आपको एबनॉर्मल सेंसेशन होना, आपको फेस में अलग से एबनॉर्मल सेंसेशन हो रही है, आपके हाथ में अलग से एबनॉर्मल सेंसेशन हो रही है, वो भी बच्चे परसीव कर लेते हैं। दूसरा है कि आपके हाथ और पाँव, जिसको हम हेमीप्लेजिक बोलते हैं, हाथ और पाँव में ढंग से वो काम नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि वीकनेस हो रही है, मुझे हाथ और पाँव में वीकनेस होनी स्टार्ट हो गई है, अब हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज अनदर थिंग। तो ये सारे बहुत कॉमन नहीं है। बाकी फिनोमिना जो सेंसरी एंड हेमीप्लेजिक मैंने बताया, विजुअल फिनोमिना सबसे कॉमन है जो बच्चे बता पाते हैं। जनरली जो ये झंझनाहट है एक साइड की बॉडी पे होती है, हाँ, जैसे पैरास्थीसिया बोलते हैं ना। किसी होने वाली है, तो उस समय डरना नहीं है, आपको ये सारे सिम्टम्स नोट करके डॉक्टर को बताने। तो लाइफस्टाइल मेजर्स जो मैं बता रही थी कि ट्रीटमेंट का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम स्मार्ट प्लान बोलते हैं। तो स्मार्ट प्लान में सबसे पहले है स्लीप, जिसमें रेगुलर एंड सफिशिएंट स्लीप। हर एज के बच्चे में अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे में ज़्यादा, बड़े बच्चे में थोड़े कम नींद की रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। लेस देन 5 years एटलीस्ट 9 to 11 hours स्लीप, 5 to 10 years एटलीस्ट 10 hours स्लीप, मोर देन 10 years 8 to 9 hours स्लीप। तो ऑन एन एवरेज 8 घंटे से लेके 11 घंटे तक के बीच में बच्चे की नींद 24 घंटे की होनी चाहिए। और इसमें एक मैं पॉइंट इंपॉर्टेंट बोलती हूँ, स्पेशली फॉर एडोलेसेंस। एडोलेसेंट मतलब मोर देन 10 year old बच्चे, कि रात को ही रात बनाएं। ऐसा नहीं है कि वो सवेरे 4 बजे सोएंगे और उसके बाद वो 10 घंटे सो रहे हैं और जी वो दिन में उठ रहे हैं। तो रात को ही रात बनाना है और दिन को ही दिन बनाना है। स्लीप ड्यूरेशन से ज़्यादा आपकी जो नाइट का हार्मोन होता है वो भी नाइट में ही सिक्रीट होता है, एंड दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। बहुत सारा हार्मोनल चेंज, बहुत सारा बॉडी का ग्रोथ, मेमोरी, लर्निंग स्लीप से रिलेटेड है। तो आपकी रात में आपको सोना है और सवेरे उठना है। दूसरा है मील्स, बहुत ही रेगुलर एंड सफिशिएंट मील होना चाहिए। ब्रेकफास्ट जरूर होना चाहिए, एंड हाइड्रेशन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड हाइड्रेशन, पानी बच्चों को ज़्यादा पीना चाहिए। तीसरा है ए से एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सेसिव नहीं। आधे घंटे की अगर एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब या तो वॉक हुआ, या वो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। अगर बच्चा डांस करता है, दैट इज एक्सरसाइज। टाइकोंडो कई बच्चे जाते हैं, कई टेनिस जाते हैं। तो अगर वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं डेली, दैट इज ओके, अदरवाइज वो स्टार्ट करें। चौथा है रिलैक्सेशन। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम स्ट्रेस की बातें कर रहे हैं कि बच्चों को होता है स्ट्रेस बट हम परसीव नहीं कर पाते, उसके लिए उन बच्चों को रिलैक्सेशन थेरेपी। तो स्ट्रेस रिडक्शन, अब बोलने से तो स्ट्रेस रिडक्शन हो जाएगा, आप स्ट्रेस कम करो, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए उनको मेडिटेशन इज वेरी गुड, योगा इज वेरी गुड, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज लाइक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इज वेरी गुड एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस डेली। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी हेडेक बहुत तेज स्टार्ट हो रहा है, मैंने तेज सांसें ली, मेरा हेडेक खत्म हो जाएगा। आप रेगुलर अपना रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको हेडेक के अटैक्स कम होंगे। सो दैट इज रिलैक्सेशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रिगर अवॉइडेंस। तो ट्रिगर में स्ट्रेस, एज यू कैन सी स्ट्रेस इज देयर। स्लीप डिप्राइवेशन, दैट मीन्स जैसे मैंने नींद की बात की, अगर आप कम सो रहे हैं, आपको
हेडेक ट्रिगर हो जाएगा। दूसरा आई मीन अदर ट्रिगर्स जो होते हैं सबसे कॉमन वो होते हैं, एक तो एग्जाम का स्ट्रेस, बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है। दूसरा होता है कि अगर ऑल्टीट्यूड चेंज हो गया, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, एनवायरनमेंट बहुत ह्यूमिड हॉट एनवायरनमेंट है तो भी किसी किसी को स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी पर्टिकुलर फूड से बच्चे को हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो देयर आर मल्टीपल ट्रिगर्स। ट्रिगर्स में आपका एनवायरनमेंट चेंज, आपका फूड, स्ट्रेस, स्लीप, ये सारे ट्रिगर्स हैं। तो ये सब भी आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्टीमेटली जो स्मार्ट प्लान है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो शायद दवाइयों की जरूरत हमें कम पड़ेगी। सर रेस्ट स्लाइड्स आई विल टेक लेटर इफ यू कैन, इफ यू वांट टू कंक्लूड। राइट मैम, राइट। कुछ स्पेसिफिक फूड बताना चाहेंगी जो बहुत स्पेसिफिक माइग्रेन के साथ एसोसिएटेड हैं? कॉमनली देखिए, चॉकलेट। मैं एक चार्ट आपको दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये, जैसे मैं एक नॉर्मल बच्चा है वो ये खाने लगेगा तो उसको माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नोशन नहीं है। इस नोशन का मतलब है कि अगर किसी को माइग्रेनस टेंडेंसी है, एक बच्चा है जिसको माइग्रेन हो, जिसको हेडेक हो रहे हैं फ्रिक्वेंट, और उसको अभी उतने सिवियर नहीं है, बट कभी कभी वो जब वो ये फूड खाता है उसको बहुत सिवियर हेडेक हो जाता है। तो दैट मीन्स दिस फूड increases the severity of headache. This food is taken as trigger. इस फूड में सबसे पहले कैफीन, नाइट्रेट्स, जो अलग अलग कंपाउंड्स की थ्योरी है, जैसे नाइट्रेट्स है, टेरामीन है, फिनाइलइथैलेमीन है, हिस्टामिन है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि हम अजीनोमोटो बोलते हैं, जंक फूड्स में होते हैं, चाइनीज में होते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपकी बॉडी में जाके ऐसे पेन सेंसिटिव जो वेसल्स होती हैं उनको कुछ केमिकल मैकेनिज्म से वो डायलेट कर देते हैं और आपके हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसी को अगर हेडेक है तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, हम बोलते हैं। आप या तो अपनी डायरी बनाएं कि ये चीज़ें आप टॉलरेट कर पाते हैं कि नहीं, जैसे कैफिन, जिसमें हॉट डॉग एंड जंक फूड है, यहाँ पे आपके फिर वाइन एंड ऑल तो बच्चों में नहीं है, चॉकलेट्स, चीज़, एंड देन यू हैव सिट्रस फ्रूट्स ऑल्सो। नेक्स्ट अगेन चीज़ इज देयर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो एस्पार्टेम होता है वो सब भी हेडेक ट्रिगर करते हैं। चॉकलेट्स, नट्स हम मना करते हैं, पीनट बटर, तो ये भी बहुत कॉमन होता है, बच्चे बहुत शौकीन होते हैं पीनट बटर खाने के। अगर जिनको हेडेक है, माइग्रेन है, हम उन्हें अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट्स, सॉल्टी फूड्स, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए एंड नोट डाउन करनी चाहिए। हेडेक डायरी की जब मैं बात करूँगी आपको और बताऊंगी कि कैसे आप डायरी को नोट डाउन करें अपनी डाइट। तो दीज आर द फूड्स विच विल ट्रिगर माइग्रेन। हर बच्चे को इसको खाने से माइग्रेन हो जाएगा ये नहीं है, बट डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों की लाइफ बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए, स्पेशली जिनको माइग्रेन होता है। उनकी लाइफ में स्लीप का साइकिल नॉर्मल होना चाहिए, स्ट्रेस थोड़ा कम, एक्सरसाइज साथ में और प्लस डाइट। तो थोड़ी सी डिसिप्लिन लाइफ उनको मैनेज करना पड़ता है ताकि उनके हेडेक कम रहे। व्हाट डू यू डॉक्टर अनीश? कैन ए चाइल्ड विद रिपीटेड वोमिटिंग हैव माइग्रेन? जिस बच्चे को बार बार उल्टी होती है, कुछ बच्चे आते हैं साइक्लिकल वोमिटिंग के, 3-4 हफ्ते में उन्हें वोमिटिंग के एपिसोड्स हो जाते हैं। सो क्या? वेरी राइटली सेड, एटिपिकल माइग्रेन्स आर नोन। दैट मीन्स उनको हेडेक तो है ही नहीं, उनको अलग सिम्टम है, जिसमें डॉक्टर अनुज ने जैसे बताया है कि वॉमिटिंग, रिकरेंट वॉमिटिंग होना, उनको 1 घंटे में 3-4 बाउट्स ऑफ सिवियर वॉमिटिंग हो गई, इतनी वॉमिटिंग हो गई कि बच्चा डिहाइड्रेट हो गया। So the criteria is at least 4 vomiting in an hour, and वो बहुत रिकरेंट होता है, हर हफ्ते हो सकते हैं या हर महीने में, 6-8 महीने में हो सकते हैं, ऐसे 2-3 दिनों तक चल सकता है। तो जब आपने उस वॉमिटिंग का सारा इन्वेस्टिगेशन किया, आपको कोई कारण नहीं मिला, देन साइक्लिकल वॉमिटिंग सिंड्रोम सीवीएस इज अ एटिपिकल वेरिएंट ऑफ माइग्रेन। इन बच्चों को फिर माइग्रेन की तरह ट्रीट किया जाता है एंड फाइनली दे कम आउट। तो दैट इज वन थिंग। दूसरा होता है एब्डोमिनल माइग्रेन। दैट मीन्स बच्चे को सिर्फ पेट दर्द होगा, उसको पेट दर्द होगा, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसको कुछ और अदर फिनोमिना होते हैं। सो रिकरेंट पेन एब्डोमेन कैन आल्सो बी अ वेरिएंट ऑफ माइग्रेन। ये दो एटिपिकल वेरिएंट ऑफ कॉमन माइग्रेन होते हैं। राइट। Do these children will require, do these children need migraine drug for life? नहीं, माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट होता है, पहला सबसे, माइग्रेन इज अ क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर, पेन का क्योर नहीं है। बेसिकली यू हैव टू प्रिवेंट इट, आपको प्रिवेंट करना है ताकि हेडेक्स ना हो। अगर आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल बिल्कुल हेडेक नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है, दैट मीन्स
हेडेक अंडर कंट्रोल है। सो दैट मीन्स आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ अ क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर जिसमें कि लाइफस्टाइल मेजर्स आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दवाई स्टार्ट की गई है, डॉक्टर ने दी है फॉर प्रोफाइलैक्सिस, टारगेट होता है कि बच्चे को 6 महीने तक कोई सर दर्द ना हो, उसके बाद वो धीरे-धीरे कम करके वो बंद कर सकते हैं। तो अगर दवाई बंद हो गई और बच्चे को फिर से हेडेक स्टार्ट नहीं हुई, दैट मीन्स इट इज़ फाइन, नॉट नेसेसरी टू टेक मेडिसिन ऑलवेज़। तो जो ये जनरल नोशन होता है कि मेडिसिन स्टार्ट हो गई इतने छोटे एज में, इसको तो सारी उम्र खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ टाइम के लिए बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना होता है और आपको मेडिसिन से उसका हेडेक कंट्रोल करना होता है। फिर बच्चा अपने आप ही समझ जाता है कि मुझे क्या करने से हेडेक होगा, क्या करने से नहीं होगा। मैम, व्हाट आर नॉन मेडिसिनल थेरेपीज फॉर माइग्रेन बिसाइड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट? सो नॉन मेडिसिनल थेरेपीज में मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर किसी को बहुत सिवियर और बहुत रिकरेंट माइग्रेन होता है तो एक थेरेपी होती है जिसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी बोलते हैं उसे। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ये आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे पेन को टॉलरेट करना है। ये मैं आपको बहुत क्रूड स्टाइल में बता रही हूँ, नॉट द टिपिकल साइंटिफिक मेथड ऑफ दैट। दे विल ट्राई टू इम्प्रूव योर टॉलरेंस टू पेन। वो आपको ऐसी टेक्निक्स बताएंगे ताकि आप पेन को टॉलरेट कर पाएं और ग्रेजुअली आपको वो पेन परसीव नहीं होगा। सो दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दूसरी थेरेपी है रिलैक्सेशन। जैसे हमने बताया कि अगर आप रेगुलर रिलैक्सेशन करेंगे, योगा करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, आपकी एंजाइटी पे ध्यान देंगे, तो आपको हेडेक नहीं होंगे। जो न्यूएस्ट थेरेपी आ रही है वो एक है ट्रांसक्यूटानियस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिसको हम टीएमएस बोलते हैं। बहुत सिवियर एंड टिपिकल माइग्रेन है जिनको बाकी चीज़ों से नहीं आराम हुआ, उसको मैग्नेटिक स्टिमुलेशन से दे ट्राई टू प्रिवेंट योर हेडेक्स। और एक थेरेपी है कीटोजेनिक डाइट। जैसे ये डाइट हमने बात की कि इसको आप ये चीज़ें अवॉइड करो, दीज कैन बी ट्रिगर, बट समटाइम्स यू वांट टू गिव अ डाइट ताकि बच्चे को हेडेक ना हो, जिसमें एक कॉमन डाइट है कीटोजेनिक डाइट। आप ऐसे डाइट प्लान बताते हो बच्चे को जिसमें उसका कीटोन्स बढ़ जाते हैं एंड देन फाइनली आपके हेडेक की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो मैंने कीटोजेनिक डाइट बताया, ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बताया, ट्रांसक्यूटानियस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, मैंने सीबीटी बताया। ये तीनों तो मेडिकल पार्ट है। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, बायो रिलैक्सेशन टेक्निक्स। और एक मैं छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया टेक्निक बताता हूँ, बबल थेरेपी। जो बबल्स बनाते हैं वो बच्चों को बबल्स ऐसे में, जब भी वो स्ट्रेस में लगे, कहीं परेशान लगे, उलझन में लगे, तो आप उनसे बबल बनाने के लिए कहें और वो फौरन डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक तो उससे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, सांस खींच के धीरे से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बबल के लिए आपको फूक पानी, एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग करना पड़ता है। थोड़ा जो है पर्स लिप्स से आपको एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, और वो आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो स्लो डाउन कर देगा। एक चीज होती है बायोफीड मैकेनिज्म। बायोफीड मैकेनिज्म में देखा गया कि जो लोग बहुत एंग्शियस हैं, जिनका जैसे हमारी कुछ चीजें तो कंट्रोल में होती है, जैसे मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ तो दिस इज इन माय कंट्रोल, मुझे चलना है, मुझे किसी को वेव करना है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरा मन है, वो उसमें कैसी वेव्स निकलनी है वो मैं उन्हें नहीं कंट्रोल कर सकता इन जनरल। मेरा हार्ट रेट वो बढ़ गया, घट गया, क्या हो गया, मेरा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बायोफीड मैकेनिज्म के अंदर कंप्यूटर पे आपकी जितनी इंटरनल एक्टिविटी है उनका वेव फॉर्म देखा जाता है, और फिर धीरे धीरे आप वो सीखते हैं कि कैसे उसको कंट्रोल करना है। इसका सबसे सरल तरीका बच्चों के लिए, और जो बिल्कुल आप घर पे कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्लो ब्रीदिंग। स्लो, इफ यू आर डूइंग डीप ब्रीदिंग, बहुत तेज तेज सांस ले रहे हैं, तो फिर आपने स्ट्रेस हार्मोन को और अपने अमिगडला को और ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया, एंड यू विल हैव मोर कॉर्टिसोल टू वर्क ऑन योर बॉडी एंड मोर एंजाइटी, मोर स्ट्रेस। तो आप अपने बच्चे को समझाइए उसकी ब्रीदिंग स्लो कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, एक पाइप बना दें कागज को मोड़ के, और बच्चे को कहें नाक से गहरा सांस लेके पाइप के अंदर सांस को छोड़ें। तो ये थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और वो बेटर फील करेगा। आप 10 बार ऐसे दिन में 3 बार करें तो बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, और ये एक आपका बहुत आसान तरीका है उसका हेडेक और एंजाइटीज दूर करने का। थैंक यू डॉक्टर रजनी। दीपमान, कोई क्वेश्चन है आपके पास ऑडियंस की तरफ से? Dr. Rajni, thank you so much. And can we take the slides out? या श्योर। सो एक हेडेक डायरी का स्लाइड मैं Sure. लास्ट शेयर कर देती हूँ। Please. Yes. तो ये हेडेक डायरी सब पेरेंट्स के लिए एक सैम्पल डायरी है, ताकि आप लोग नोट करें कि हेडेक जिनको अगर रिकरेंट हो रहे हैं आप कैसे उसको नोट डाउन करें। पहले कॉलम में डेट है,
दूसरे में टाइम ऑफ ऑनसेट है। तो अगर हम को रेगुलर पैटर्न मिल रहा है कि किसी को सिर्फ 6 बजे ही होता है, शाम को होता है, 3 बजे जब बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तब होता है, तो हमें कुछ आइडिया मिल सकता है कि किस वजह से हेडेक हो रही है। सेकंड है ड्यूरेशन, जिसमें हमने बताया था कि टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कितने मिनट्स का हेडेक होता है वो इम्पोर्टेंट है। देन आउट ऑफ 10 सिवियरिटी स्कोर आप नंबर लिख सकते हैं इसमें। तीसरा है चौथा है ट्रिगर। तो ट्रिगर क्या क्या है, अगर किसी को डाइट से हो रहा है, किसी को स्ट्रेस है, किसी ने रात में सोया नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। मेडिकेशन मतलब आपने पैरासीटामोल या एनाल्जेसिक जो भी डॉक्टर ने एडवाइस की है उस टाइम पे देने के लिए आपने दी या नहीं दी। कई बार क्या होता है, बच्चे को हेडेक हुआ, उसने दवाई खा ली, तो एक महीने में 15 हेडेक हुए, 15 बार दवाई खा ली, तो दैट इज नॉट गुड। दिस विल हेल्प यू कीप अ रिकॉर्ड कि आपने कितनी एनाल्जेसिक की जरूरत है आपको हेडेक के लिए। एंड देन दिस इज एक्स्ट्रा कॉलम, यू कैन राइट योर रिमार्क्स कि बच्चे को फीवर था, नहीं था, वॉमिटिंग हुई, उल्टी हुई, एडेड सिम्टम्स कोई हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर नोट डाउन करें। इससे एक पूरा रिकॉर्ड बन के रहेगा एंड हेडेक का कैरेक्टर जानने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा डॉक्टर को। एक सैम्पल डायरी मैं आपको दिखाती हूँ, इक्वेशन में बना के भेजा था ये वाला। सो ये 6 दिन का रिकॉर्ड बताया उन्होंने, एक महीने में करीब 6 बार हुआ उन्हें, 1 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 40 मिनट। तो यहाँ पे वॉमिटिंग लिखा उन्होंने कि वॉमिटिंग हुई 2 बार, बाकी टाइम नहीं हुई। आउट ऑफ 10 सीवियरिटी देखिए 8 भी है, 6 भी है, 7 भी है। सो दैट मीन्स मॉडरेट टू सीवियर हेडेक रहा है, 2 घंटे से ज़्यादा का हेडेक है। आज मार्च एग्जाम था, आज मैं सोया नहीं, आज फिर एग्जाम था। तो यू नो दैट स्ट्रेस इज अंडरलाइन। जब भी बच्चे को स्ट्रेस होता है फॉर सम रीजन, बच्चे को ये वाले हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं, तब उसने 6 में से 3 बार दवाइयाँ ली। सो दिस ओवरऑल वेरी क्लीन डायरी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बच्चे को हम कैसे अवॉइड करें कोई भी क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर में, हाउ टू अवॉइड इट। ट्रिगर अवॉइडेंस इज अ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके लिए आपको हेडेक डायरी बनाना चाहिए जरूर। या कुछ मैम, जैसे जिन बच्चों को माइग्रेन है, क्या उनकी क्लास टीचर को भी पता होना चाहिए इसको माइग्रेन है? उनको भी कुछ स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि इसको माइग्रेन अगर स्कूल में हो रहा है तो कैसे कंट्रोल करना है? अगर किसी को बहुत ही सिवियर है, लाइक बहुत फ्रिक्वेंट भी होता है और सिवियर भी होता है, तो बच्चे को अगर माइग्रेन की ऑरा हो रही है और उसको पता है कि मेरा ये हेडेक बहुत बढ़ने वाला है एंड आई विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट, उसको ज़रूर टीचर को जाके बताना चाहिए, ताकि बच्चे को रेस्ट मिल पाए एंड ही कैन अबॉर्ड द क्लास। उसको इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि वो क्लास छोड़ के मेडिकल रूम जा पाए। और अगर क्रॉनिकली ऐसा है उसको कि मेडिसिन की ज़रूरत है पर्टिकुलर टाइम पे, या उसको ये बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी से, सपोज आपकी 12 बजे कोई फिजिकल एजुकेशन की क्लास है और आप जा रहे हैं, आपको हेडेक हो रहा है, तो आपको क्लास टीचर को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर वो सिवियर, मॉडरेट टू सिवियर वाली कैटेगरी में है और वो ये सब फिजिकल एक्टिविटी नहीं टॉलरेट कर पाता, तो आपको ज़रूर बताना चाहिए टीचर इन एडवांस। अच्छा, वो फिजिकल एक्टिविटी, स्कूल की फिजिकल एक्टिविटी में तो उसको हेडेक हो रहा है, घर आके जो क्रिकेट खेला उसमें हेडेक नहीं हो रहा, तो ये भी पॉइंट नोट करना होगा हमें। तो टाइमिंग की बात है एक्चुअली, अगर दिन की क्लासेस हैं, इट इज सेट कि जो एनवायरनमेंट है, अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, दिन के टाइम में वो कोई एक्टिविटी कर रहा है स्कूल में, तो उसको हेडेक होने के ज़्यादा चांसेस है कंपेयर टू वो शाम को 6 बजे या 7 बजे खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, तब शायद हेडेक होने के कम चांसेस है। ये भी पैटर्न नोट करना पड़ेगा, हर बच्चे का अलग होता है। तो ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। जो बच्चे गर्मी में जाके जिनको सिर दर्द हो जाता है तो उनके पेरेंट्स को उनका टाइम रीशेड्यूल करना होगा उन्हें। बहुत कॉमन है 3 बजे, अगर आप पेरेंट्स से पोल लेंगे तो वो बोलेंगे बच्चा जब 3 बजे मेरा घर आता है, एक तो स्कूल की टाइमिंग है कि वो 2-2:30 बजे वो फिनिश होता है, उसके बाद बच्चे का ट्रैवल टाइम होता है, दिल्ली एनसीआर में तो और भी ज़्यादा। बच्चा घर पहुंच रहा है आधे पौन घंटे के ट्रैवल के बाद, बस है चाहे कुछ भी है, चाहे एसी बस है, बट वो ट्रैवल भी एक एग्जर्शन है, प्लस टाइम पे खाना नहीं खाया, वो 3 बजे घर घुस रहा है, फिर उसने खाना खाया। तो जो 1 से 3 का टाइम है जब एक्चुअली बच्चे खाना खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, उस टाइम पे उनको एग्जर्शन हो जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे बच्चे को हेडेक स्टार्ट हो जाता करेक्ट। तो ऐसे बच्चों को या तो शाम को खेलना चाहिए या सुबह को खेलना है। चाहिए। यस, और उनका ट्रैवलिंग भी, अगर स्कूल का ट्रैवलिंग एक इशू है, तो मैंने बहुत 1-2 पेरेंट्स को ऐसे भी काउंसिल किया कि आप ऐसा कुछ करो, या तो घर वहाँ पे लो या उतने दूर वाले स्कूल में मत भेजो। जैसे एक बच्चा आया, उसने बोला मेरे 1 घंटे की ट्रैवल है, जस्ट बिकॉज वो यहाँ था, उसको दिल्ली में पढ़ाना था, कुछ इश्यूज थे। तो ट्रैवल टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली समर्स में, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में, अगर बच्चे को माइग्रेन है वो नहीं टॉलरेट करता। करेक्ट। तो अगर एक एक महीने में 3 से 4 बार अटैक आ रहे हैं तो आपके बच्चे को सीवियर हेडेक है। और अगर आपके बच्चे को एक दिन में 3 से ज्यादा पेन किलर लेने पड़ रहे हैं तो उसको सीवियर हेडेक है। आप उसके लिए जरूर बच्चों के डॉक्टर से मिलें या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें।
अब इंडिया बहुत डेवलप हो रहा है, जैसे डॉक्टर रजनी है, शी इज ए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। अभी हर शहर में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, बट एनसीआर वगैरह में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है। और स्पेशल नीड बच्चे डॉक्टर रजनी पे भेजे जाते हैं या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट पे भेजे जाते हैं। आपका पेरेंट्स कोई भी सवाल है हमसे हेडेक के बारे में, तो आप प्लीज राइट इट डाउन इमीडिएटली। अभी डॉक्टर रजनी या मैं उसका जवाब देंगे। डॉक्टर दीपमान जी कोई Sure. please. Yes, Dr. Anuj, thank you so much, Dr. Rajni, for your presentation. There are a few questions we have already. So one of the question, how we will understand if a non-verbal and a kid is having headache or not? Any specific symptom can be captured? या ये हमने डिस्कस भी किया। जैसे हमने छोटे बच्चों की बात की, लेस देन 3 इयर्स, जो हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो नॉन वर्बल है। सेम चीज़ अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है जो कि 7 इयर्स का है, 8 इयर्स का है, और उसको कोई चीज़ का पेन है, लाइक पेन एनीवेयर, हेडेक हो या कुछ और हो, सबसे पहला सिम्टम आएगा बिहेवियर का। देन अ मदर नोज दिस इज नॉट द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ माई चाइल्ड। वो ज़रूरत से ज़्यादा इरिटेबल होगा, ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, बात नहीं सुनेगा, या वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका स्लीप पैटर्न ऑल्टर हो जाएगा। वो सोना चाह रहा है, नॉर्मली वो 2 बजे सो जाता है, बट आज वो नहीं सो पा रहा है। तो स्लीप एंड बिहेवियर। तीसरा है डाइट। अगर वो नॉर्मली रोज हाफ चपाती, 1 चपाती, जो भी बच्चे की डाइट है वो खा लेता है, बट वो आज बिल्कुल नहीं खा रहा है, दैट इज अनदर। वॉमिटिंग हर बच्चे में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो इम्पॉर्टेंट है बिहेवियर, स्लीप एंड डाइट। तो दीज आर द 3 क्लूज। जब बच्चा ना बोल पाए तो आप नोट करें। So with this, there is a question: is headache comes with hereditary? ओके, यस। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा व्यूअर्स ने। तो इसमें ये है कि माइग्रेन के लिए स्पेशली बोला जाता है कि आपको फैमिली हिस्ट्री कॉमनली मिल जाती है। दैट कॉमनली इज अराउंड 60 to 70% लोगों में आपको फैमिली की हिस्ट्री मिल जाती है। तो मम्मी को, यूजुअली फीमेल्स को, जो अडल्ट एज ग्रुप में फीमेल्स कंपेयर टू मेल्स हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग हेडेक, चाहे वो टेंशन टाइप हेडेक हो या फिर वो माइग्रेन हो। तो मम्मी को, मौसी को, बुआ को, किसी को ऐसी हिस्ट्री मिल जाती है कि जब वो इस एज में तो उनको हेडेक स्टार्ट हो गया था। सो माइग्रेन का और एक कैरेक्टरिस्टिक है, जब आप बड़े हो जाते हो, मिडिल एजेड हो जाते हो, अराउंड 30 इयर्स, 40 इयर्स, आपको हेडेक की फ्रिक्वेंसी कम होती है। पीक होता है आपका एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब 13 साल से लेके 20 साल की उम्र में, जब आपका स्ट्रेस पीरियड है, आपका कैरियर है, कंपटीशन है, अगेन दैट इज द टाइम कि आपको बहुत सीवियर हेडेक होता है। 25 साल के बाद यूजुअली जॉब, काम डिसाइड हो जाता है, तो हेडेक भी काम नहीं लगता है। सो 15 से 25 का जो है वो एकदम पीक वाला एज होगा आपको माइग्रेन का रिकरेंट होने का या सीवियर होने का। So there is one more question. So what is the main cause of a migraine in 4-year children and how to prevent or asking for the preventive measures? Okay. So 4-year-old child, once you classify that the child has migraine, you should be doubly and triply sure, क्योंकि 4 साल के बच्चे का क्योंकि एक्सट्रीम एज है, इस केस में आप यूजुअली एमआरआई करते हो। यूजुअली क्या, आप लेस देन 6 इयर्स हर बच्चे में एमआरआई करते हो जो हेडेक के साथ आता है। बार बार आपने एमआरआई कर दिया, नॉर्मल है, आपने डायग्नोज कर दिया कि बच्चे को माइग्रेन है, उस पे हर बच्चे को हम मेडिसिन नहीं देते। मेडिसिन जैसा कि डॉक्टर अनुज ने बताया कि अगर एक महीने में 3 से 4 बार है, तो मोर देन, अगर हर हफ्ते उसको हेडेक हो रहा है, तो यस, दैट चाइल्ड क्लासिफाइज, तो उसको मेडिसिन देने की ज़रूरत है। अगर इतना फ्रिक्वेंट नहीं है तो आप मेडिसिन ना दें। या फिर सिवियरिटी, अगर बच्चे को एक महीने में एक ही हेडेक है, लेकिन वो हेडेक 2 दिन 3 दिन तक लगातार चलता है और बच्चा परेशान रहता है, सो प्रोलॉन्ग्ड हेडेक या फिर फ्रीक्वेंट हेडेक, ये दोनों क्राइटेरिया होता है कि आपको बच्चे को कोई मेडिसिन ऐसी देनी चाहिए जिससे ये बार बार ना हो। प्लस बच्चे को उसकी लाइफस्टाइल मेजर, अब 4 साल के बच्चे का डिसिप्लिन सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप डाइट का ध्यान रख सकते हैं, स्लीप का ध्यान रख सकते हैं, एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, जैसे कि सर ने कुछ प्ले एक्टिविटीज के साथ बताया, बबल थेरेपी, पाइप में डालना, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। विद डॉक्टर अनूज एक्सपीरियंस, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि ये सब चीज़ों से आप बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर मेडिसिन देनी पड़ी तो अलग टाइप की मेडिसिन होती है जो आप छोटे बच्चों को देते हैं यूजुअली, ताकि उनका एपेटाइट भी अच्छा हो जाए और उनको हेडेक्स भी ना हो। So we have specific medicine for children who are too young, but yes, we try to avoid giving the medicine and we try to prevent them with the lifestyle measures. All of you have a wonderful medicine by the name of paracetamol or Crocin. Yeah. तो सिर्फ एक बुखार की दवाई नहीं है, सबसे अच्छा एनाल्जेसिक है, सबसे सेफ दर्द की दवाई है। जब आप किसी डॉक्टर के पर्चे पे क्रोसिन लिखा देखें तो डोंट डिस्टर्ब। आप ये ना सोचें उन्होंने बुखार की दवाई लिख दी है। और आप लोग बड़े भी, जब भी कभी कोई दर्द हो तो सबसे पहले आप
पैरासिटामोल या क्रोसिन या डोलो जो भी लेते हैं आप, वो ट्राई करें। ये बहुत अच्छी बात बताई सर ने। पैरासिटामोल वो सिर्फ बुखार की दवाई नहीं है। बहुत बार हमें ये समझाना पड़ता है कि हमने बुखार की दवाई नहीं लिखी, हमने दर्द की दवाई लिखी। पैरासिटामोल इज बोथ फॉर फीवर एंड इट इज वेरी एक्सीलेंट एनाल्जेसिक फॉर चिल्ड्रन, वेरी सेफ ऑल्सो। वेरी वेरी। Dr. Rajni and Dr. Anu sir, when we get a headache, is it necessary to get the pain in the head only, or some pain when we get at eyeballs and maybe on the nasal area? So will it be also called a part of headache, or should we treat it differently? No. So we consider that as a spectrum of headache only. Dr. Anuj, I am taking up the question. या प्लीज टेक। So अगर आपको सिर्फ इस एरिया में पेन है, दैट इज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, या फिर सिर्फ साइनसेस में पेन है, या सिर्फ आईज में पेन है, दिस एरिया which is classified as facial pain is also a part of headache spectrum, which is very well characterized by the international society as a part of headache, and we treat as headache, we treat as migraine headache या primary headache disorder. ये सारे केसेस में आपको सेकेंडरी कॉजेज, क्योंकि अगर आपको हेडेक के अलावा कहीं पे पेन है तो आपको रीजन खोजना चाहिए। जैसे कि सर ने बताया, दांत में, कान में, आईज में, नाक में, ये सारा एरिया आपने स्क्रीन कर लिया, आपने एक एक्सरे पीएनएस करा लिया, साइनसाइटिस नहीं है, दांत में प्रॉब्लम नहीं है, देन यू आर श्योर कि बच्चे को कोई सेकेंडरी हेडेक नहीं है, देन यू कैन ट्रीट एज प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर। दूसरा कि अगर किसी को प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है, एवरी टाइम एक ही पैटर्न का हेडेक होता है, अगर उसको यहाँ पे पेन है या यहाँ पे पेन है, सपोज वी से कि एक एबनॉर्मल सेंसेशन है, तो उसको हर बारी ये वाला पैटर्न होना चाहिए, देन वी कैन से कि उसको फेशियल पेन डिसऑर्डर है या यहाँ का ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। तो पैटर्न शुड बी सेम एवरी टाइम इन अ केस ऑफ प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर। सेकेंडरी हेडेक में यू शुड ऑलवेज रूल आउट एनी डिसऑर्डर, एनी इन्फेक्शन ओवर हियर। Okay. Thank In you. general, Deepmanji, for headache, if you are having simple headache, there is no reason for this headache. You should avoid taking medicine. More you take, more headache you will feel. Your expectation will be soaring very high with the medicine. So don't take medicine. Just get a good checkup and good rest, and this headache will go. Right, sir. One more question: if does this headache has any effect on the memory of a human being? Okay. So important question. That means headache से क्या क्या बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, और how can he affect the overall upbringing of the child? If a child has chronic headache, so most common reason उससे क्या होता है कि आपकी concentration कम हो जाएगी. It's not about the memory, it's about your concentration जो कि affect होता है, your learning affect होता है, because ये headache days आपके, these are minus days in your learning. So that will affect your overall school performance. School absenteeism बढ़ जाता है. You don't go to school, you don't concentrate, and that is where these headaches are disabling. तभी पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि इसको लाइटली मत लो, प्लीज विजिट योर डॉक्टर, प्लीज हैव सम ट्रीटमेंट ताकि ये चीजें कम हो. सो नॉट पर से स्पेसिफिकली फॉर मेमोरी, बट यस, स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस डज डिक्रीज. दूसरा, हेडेक बार बार होता है तो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करता है, वो ओबीज हो जाता है, तो ये भी एक कारण है. कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हेडेक हो रहा है, हमने इसको थोड़ी देर बोला कि फोन देख लो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब रादर देन दैट कि उसको फोन दे दिया डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो यूजुअली टेंशन टाइप हेडेक वाले होते हैं जो फोन पकड़ते हैं थोड़ा सा, तो उनको थोड़ा बेटर लगता है. जो टिपिकल माइग्रेन वाले होते हैं, दे विल ट्राई अवॉइडिंग द फोन्स एंड स्क्रीन ड्यूरिंग दैट टाइम. Right, ma'am. You have addressed when the child is non-verbal, but what happens to the children who are with neurotypical, maybe a child with ASD? ओके, या सो स्पेशल चाइल्ड मीन्स दैट ओनली, जैसे अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है किसी बच्चे को एंड वो ज़रूरत से ज़्यादा क्रैंकी है उसमें, या वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो बिहेवियर चेंज इन बिहेवियर, अगर एक बच्चे का, जैसे नॉर्मल बच्चे भी है, उसका हर बच्चे का अलग बिहेवियर होता है, कोई बच्चा ज़्यादा शांत होता है, कोई बच्चा ज़्यादा इरिटेबल होता है. सेम विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अपने बच्चे का रेगुलर बिहेवियर हर पेरेंट को पता होता है, और जब उसको वो चेंज इन बिहेवियर होता है, चेंज इन स्लीप होगा, चेंज इन डाइट होगा, यू विल बी एबल टू नो कि इसको ये वाली प्रॉब्लम है. एंड दैट हैज़ टू बी रिकरेंट. अगर हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं, उसको रिकरेंट होगा. अगर रिकरेंट नहीं है, यहाँ पे कहीं पेन है, कहीं दर्द है, जिसको हम सेकेंडरी हेडेक बोल रहे हैं, तो भी यही वाली सिम्टम्स आएंगे. Thanks, doctor. There is a question from the social media. It's saying, is headache leads to a social isolation out of fear of getting headache? ओके. सो एडोलेसेंस बिहेवियर के लिए वो बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी को बहुत सिवियर हेडेक हो रहे हैं, एंड वो सोचते हैं, एडोलेसेंस जब बाहर जाते हैं तो दे हैव लॉट ऑफ जंक फूड्स, दे हैव दिस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड ऑल, तो अगर वो जब मिलेंगे
तो वो पार्टी करेंगे, कुछ खाएँगे तो उनको हेडेक हो जाएगा। तो ये बहुत रेयर है कि कोई बच्चा अवॉइड करता है, बट येस देयर इज़ अ चांस अगर किसी को इन फूड आइटम से ट्रिगर होता है तो दैट इज़ रिलेटेड। दूसरा है कि जब लेट नाइट होते हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं एडोलेसेंट्स वो चाहते हैं कि वो लेट नाइट कुछ गेमिंग करें या कुछ करें in their social group, so they try to avoid that. Then there is a social phobia because that sleep deprivation leads to headache. जिस भी रात में बच्चे ने 2 बजे तक जग के वीडियो गेम खेला, अगले दिन उसको हेडेक हो गया. So that is how this phobia develops. Thank you, Dr. Rajni. You have pointed out one more thing. The physical activity is also required, and it is particularly for the children. And we know we are going through a difficult time. But at I'm the Best Mom, we have every week we have series of days specified for yoga for children in a playway method. So it happens four days a week. Please encourage the children to be a part of this program. And currently we are having. In association with Government of India, Fit India initiative with a 21 days yoga certification program. So where a lot of kids are learning yoga in a playway method. So do encourage them to be a part of this program. And you can log into I'm the Best Mom and can go through the details and be a part of it absolutely complimentary from I'm the Best Mom. So this is a very good initiative, I must say. So all credit goes to the host team and Dr. Anuj, of course, for taking an initiative. This is a very good program. Actually, in this COVID times when people are not going out and you're creating awareness as well as you're giving a platform where they can perform this activity. And there is an added advantage that you get a certificate also. So multiple things together. So everybody should grab it, I would say. Indeed, and we certainly encourage every child. And if we are liking something, let us spread it. Let us let all the children get the benefit. Please share it with all your well-wishers. And there was few questions coming up, and Dr. Anuj, and you have also pointed out very clearly that the importance of having the right kind of food. Even today, we have one more question. I would request if Dr. Anuj can answer that, though it is not pertaining to the headache, but since there is a question, Dr. Anuj, if you can address, my child is 7-year-old. He has a habit of tooth decay. So what should I do? Will you like to take today? First of all, toothbrushing is the most important thing, and which should always be done at night. Because the secretion of saliva that comes down to less than 10% in the night, and there is no cleaning of the devices or the hidden food particle during night, and children become more prone for tooth decay. There are certain diseases also like celiac disease where tooth decay is more important, and some calcium related problems. So this is only when a doctor will examine this child can help you better. But in general, you should brush your teeth in night. This is more important than brushing teeth in the morning. Right. Indeed. And for anyone who have not got the ebook, which is talking a lot of basic facts about children, what to eat, what not to eat, and in a playway method, or maybe to understand more in detail. So please get your ebook, which is for everyone, and that will certainly going to make your life. A lot of input will come from the book of I'm the Best Mom, which is written by Dr. Anuj Sastry. And at times, children don't like to hear from the parents, but when it comes from their superhero, they love to hear. So Jaji Tara is one of the superhero character which is loved by many children, and the new message has come from Jaji. So it is all there for the children. So let them be a part of it. And while showing this, I also would like to say a big thanks to Dr. Rajni for her time and contributing to the topic of the day, and Dr. Nusar. So with this, I'm also sharing Jaji's new video. So please go through it. The kids will love it. क्रिकेट खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना क्रिकेट, कबड्डी खेलते हैं। नहीं यार, वीडियो गेम्स खेले। यार ऐसे तो हम कभी डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या खेलना है। मेरे पास है सॉल्यूशन। हम वो गेम्स खेलेंगे जो हमने आज से पहले कभी खेले ही नहीं। नाइस आइडिया जेजी, बट कौन से गेम्स? मैं बताता हूँ। पहला गेम है क्रूकेड वर्ड्स।
ओके गाइस, अब हमारा टास्क है कि हम एक वर्ड डिसाइड करेंगे और वो वर्ड हमें इस पेन से लिखना है। दैट्स सिंपल। नॉट एग्जैक्टली, लेट्स से हमारा वर्ड है कैप्सूल। अब पहला लेटर सी लिखने के लिए हम सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। जायरा, रियो, तुम लोग स्ट्रिंग को अपनी तरफ से खींचो हल्के से। रघु, तुम स्ट्रिंग को ढील दो। खींचो धीरे धीरे, लेफ्ट राइट राइट, धीरे धीरे खींचो। लेफ्ट, खींचो लेफ्ट, धीरे राइट धीरे। राइट, लेफ्ट, खींचो। वाह, ये गेम में मजा आ गया। व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज कप पोंग। इस गेम में हम सब के पास एक कप होगा और हम सब सर्कल बना के खड़े होंगे। नाउ ये पिंग पोंग बॉल हमें एक कप से फेंकना है एंड अगले प्लेयर को उसे कप में कैच करना है। जो कैच अपने कप में नहीं कर पाया वो आउट। ऑसम! ऑसम! अब क्या? नेक्स्ट इज बॉल रोलिंग प्लैंक्स। यहाँ हमारे पास ये आधे कटे हुए पाइप्स है। हम सब एक लाइन बना के खड़े होंगे। अब मैं इस बॉल को पाइप में स्लाइड करूँगा एंड नेक्स्ट प्लेयर तुरंत अपना पाइप मेरे पाइप को अटैच करेगा ताकि बॉल नीचे ना गिरे। एक के बाद एक सब अपने पाइप्स प्रीवियस प्लेयर के पाइप को अटैच करेंगे और इस तरह हमें बॉल को बिना गिराए गार्डन के एक एंड से उसे दूसरे एंड तक लेके जाना है। वाओ, लेट्स प्ले। वाह जेजी, ये नए गेम्स खेल के तो मजा ही आ गया। दोस्तों, ये गेम सिर्फ फन ही नहीं देते हैं बल्कि हमारी एजिलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, टीम प्लेइंग कैपेबिलिटीज भी बढ़ाते हैं। अब से तो हम इसी तरह के नए गेम्स खेलेंगे। Indeed, this is amazing, and I believe there is a world outside the gadget. And thanks to Jaji. So Do you thank you so struggle much. to manage Thank your you so time? much for And I often all of your left with time. this feeling, where did my And, time? We will be looking forward to see you all with the next episode of Cover Paste Cover Story. Please do share your feedback. Thank you, Dr. Rajni, once again. Thank you, Doctor.